नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So, do you remember last time or what did we discuss last time? Yes, Rudra Gita. Yes. So who were involved in that? Who chanted Rudra Gita? Bhagavan Rudra, Bhagavan Shiv. And who did he speak to? No, Prachetas. He spoke to Prachetas. Prachetas, who are son of Prachin Barhi. He is also called Barhishmat. Yeah. And who is son of Havirdhan. Havirdhan is also called the place where the yajna is performed. And Havirdhan is son of Vijitashva, who is son of Maharaj Prithu. So, Prachetas, they were going to perform the austerities, and as they were going, they left the house, they were going towards the water, and as they were walking, suddenly they heard kettle drums, they heard musical instruments, and they saw that Lord Shiva was appearing out of a lake. And then Lord Shiva spoke to Prachetas, and he told them, I know Prachetas, they are actually 10. They are 10 sons of Prachin Barhi or Barhishmat. And their mother appeared from the ocean. So there is also that connection. They are going to perform austerities in the ocean. So as they were walking towards the ocean, Lord Shiva appeared from the lake, and then Lord Shiva told them that I know your intentions. You are going to perform the austerities. And then Lord Shiva spoke to them and told them about the Rudra Gita. And Lord Shiva said to them, this is composed by me. Rather, this was spoken to them by Lord Brahma, when Lord Brahma instructed them to increase the progeny. So Lord Shiva said, I've heard it from Brahmaji. Now I'm telling this to you. And if you recite this, Lord Vishnu will be very pleased with you. And I wish all the best to you. So like this, Lord Shiva spoke to Prachetas, and then Prachetas went into the ocean for 10,000 years. For 10,000 years, they went under the water and they performed severe austerities, and they chanted this Rudra Gita, which was spoken to them by Bhagavan Shiva, Lord Shiva. Yeah? So now, Prachetas, they went to perform the austerities, but their father, Prachin Barhi. So this chapter, today we will cover 4 chapters. So please be prepared. But this is a long story. It will be a very interesting story, which we can relate to and link in our lives as well. So we'll cover 4 chapters.
And the essence is, now that Prachetas have gone to perform the austerities, their father Prachin Barhi, he is still engaged in performing Karam Kand activities, which is called fruitative activities, where you do certain activity and you are expecting a result. They are called fruitative activities. There are other karmas also where the sole purpose is to please the Supreme Personality of Godhead. Right? Ahetuki apratihirta yayatma suprasidati. So that is called the parodharma of all the living entities. We should perform our actions, which is to please the Supreme Personality of Godhead, and where there is no hetu. Very important, where there is no hetu, as in there is no return expected. And that we learned from Prithu Maharaj also. You remember that very nice prayer, Prithu Maharaj, when Bhagwan appeared in the yagna ceremony, sacrificial area, and he asked Prithu Maharaj to ask for a boon. So Prithu Maharaj only said that, my dear Lord, yatha charet bal hitam pita swayam tatha tvamev arhasi na samihit. As a caring father decides for his children, similarly, you please decide what is good for you. So with that mood, we perform the activities. So Prachetas went to perform the austerities, but their father Prachin Barhi is still engaged in fruitative activities. And out of causeless mercy and out of compassion, Narad Rishi comes and he speaks to Prachin Barhi. So these 4 chapters are related, and we have also missed some of the sessions, and we have a long way to go. I think last time we calculated, if we go by this pace, by 2032, we might be able to, at least go through once, study Srimad Bhagavatam once. So 2032 is a long way away. Yeah. I wish good health to everyone. Right. Yeah. Okay. Yeah. So on your phones, we will take a verse from 4th canto, chapter number 28. Verse number 65. So today we will do 28, 4th canto, chapter 28. Last verse of chapter 28. 4:28:65. So we will cover chapter 25, 26, 27, and 28. And this is the last verse of chapter 28. If you have it on your phones, we start. Partisman etat adhyatma parokshena parasyatsitam yat prakaro sya priyo devo bhagavan vishva bhavanaha. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parhishman etad adhyatamam. Parhishman etat adhyatamam. Parhishman etad adhyatamam. Parhishman etat adhyatamam. Paraksh
पारोक्षेण प्रदर्शितम् पारोक्षेण प्रदर्शितम् पारोक्षेण प्रदर्शितम् पारोक्षेण प्रदर्शितम् यत्परोक्ष प्रियो देवो प्रियो देवो यत्परोक्ष प्रियो देवो परोक्ष प्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः भगवान् विश्वभावनः भगवान् विश्वभावनः भगवान् विश्वभावनः Word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. जय Please repeat. Barhishman, परमेश्वर O King Prachin Barhi, प्राचीन Etat, विकट this इस Adhyatamam, अध्यात्मम narration of self-realization, परेश Parokshayen, परोक्षेण indirectly, indirectly Pradarshitam, instructed, instructed Yat, yet because, because Paroksha Priya, paroksha priya interesting interesting by by indirect description, indirect description Deva, Deva the Supreme Lord, the supreme Lord Bhagavan, the personality of Godhead, the personality of Godhead Vishwa Bhavana, Vishwa Bhavana the cause of all causes. cause of all causes. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Jai. Please repeat. My dear King Prachin Barahi, My dear King Prachin Barahi, the Supreme Personality of Godhead, the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the cause of all causes, is celebrated is celebrated to be known to be known indirectly. indirectly. Thus, Thus, I have described I have described the story of the story of Puranjan to you. Puranjan to you. Actually, Actually, it is an instruction it is an instruction for self-realization. for self-realization. So in this verse, Naradji is speaking to Prachin Barhi. And as I said, these 4 chapters, Naradji is instructing Prachin Barhi. Prachin Barhi, you should come on time for the next time. Sorry. Because we went through all of this before you came. But it's good. No, good you asked. And sorry, I have to say that. If I don't say, then who will say? Right. So Prachin Barhi, he हिंदी में बोले ठीक है हिंदी में बात करते हैं ठीक ठीक हिंदी में बात करते हैं ओके तो ये जो 4 चैप्टर हैं 4 अध्याय हम लोग करने वाले इसमें नारद जी आज बहुत अच्छी स्टोरी बताई जाने वाली है बच्चे आप बैठ के सुन सकते हैं और जब आप बोर हो जाए तब आप जा सकते हैं प्लीज सुने ध्यान से यू कैन गो इन आप अंदर जा वजह कोई बात नहीं बेटा यू कैन गो प्लीज गो बच्चे जहां आसपास रहे वो भी बहुत अच्छा है तो थोड़ा ध्यान से सुने इसको प्राचीन बरही जो है वो ध्रुव महाराज के वंश में इनका जन्म हुआ प्राचीन बरही के पिता का नाम था हविर्धान 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 होता है जो यज्ञ की जगह होती है उसको हविर्धान कहा जाता है प्राचीन बरही के पिता का नाम था विजिताश्व विजित अश्व कहते हैं घोड़े को और विजित कहते हैं जीत लिया जिसने घोड़े को जीत लिया था तो विजिताश्व के पिता थे पृथु महाराज जब पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा के ले गए थे और क्योंकि ये जाके घोड़े को वापस ले आए तो इनका नाम तब से विजिताश्व हो गया तो विजिताश्व के पिता हुए पृथु महाराज के पिता हुए वेन और वेन के पिता हुए अंग और अंग के पिता है ध्रुव महाराज और ध्रुव महाराज के पिता है महाराज उत्तानपाद के पिता है मनु महाराज और मनु महाराज की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से ऐसे ये वंशावली तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन बरही जो राजा हैं उनके 10 पुत्र हुए
उनके 10 पुत्र हुए जिनको प्रचेता कहा गया। प्रचेता इज रिलेटेड टू वाटर, पानी से उनका रिलेशन। उनकी जो माता जो थी वो समुद्र से उत्पन्न हुई थी, समुद्र की पुत्री थी, और उनसे इनका प्राचीन बरही का विवाह हुआ था। तो प्रचेता बहुत ही उनकी भगवान में रुचि थी, अध्यात्म में रुचि थी। प्रचेता जैसे ही थोड़ा सा बड़े हुए वो घर छोड़ के चले गए। ये 10 पुत्र हैं, प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए, और ये 10 के 10 पुत्र भगवान की उपासना के लिए चले गए। जब ये घर छोड़ के जा रहे थे तो रास्ते में एक लेक आती है, और उन्होंने दूर से देखा एक मृदंगों की आवाज आने लगी, करताल बजने लगी, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, बहुत ही मधुर ध्वनि हो रही थी, और कीर्तन हो रहा था भगवान का बहुत अच्छे से, पुष्प की वर्षा हो रही थी। और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो इन्होंने देखा लेक में से भगवान शिव प्रकट हुए। और भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा प्रचेताओं से कि मैं जानता हूं तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे जो पर्पस है, मन में उद्देश्य मैं समझ रहा हूँ। तुम भगवान का आराधना करने जा रहे हो और तुम्हारा मंगल कल्याण हो, तो उसके लिए फिर भगवान शिव कहते हैं मैं तुम्हें ये रुद्र गीत बताता हूँ। और ये रुद्र गीत भगवान शिव ने कहा कि मैंने ये ओरिजिनली ब्रह्मा जी ने हमें बताया था, जब ब्रह्मा जी ने हम सबको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी। ब्रह्मा जी के अन्य भी मानस पुत्र थे और भगवान शिव भी उनमें से एक थे। तो उनको जो ब्रह्मा जी ने बताया तो भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ और उसी को तुम गाना, और जब तुम भगवान की आराधना करोगे, तपस्या करोगे, इसको गाओगे, तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हो। ऐसा भगवान शिव ने उनको कहा। और फिर उसके बाद प्रचेता समुद्र में गए और 10,000 साल तक, 10,000 years तक उन्होंने जल में रह के, जल में समाधि लेकर के इस रुद्र गीत का उन्होंने उच्चारण किया और भगवान की उपासना की। अब प्रचेता तो यहाँ पे यज्ञ, वो अपनी समाधि भगवान की उपासना के लिए चले गए, लेकिन इनके जो पिता थे प्राचीन बरही, वो अभी भी कर्म कांड में लगे हुए थे। और कर्मकांड हमने बताया, कर्मकांड क्या होते हैं, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, जिसमें पर्पस ये होता है मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, या मैं ये एक्टिविटी करूंगा तो ये मेरा दुख से निवारण हो जाएगा। दुख हानि, जिसमें कहते हैं दुख का हनन होना, एंड सुख अवाप्त, सुख की प्राप्ति। दो ही उद्देश्य के लिए कर्म किए जाते हैं, दुख खत्म हो जाए और सुख आ जाए। ठीक है, लेकिन ये कभी जाता तो है नहीं। आपको याद हो जब विदुर जी मिले मैत्रेय ऋषि से, उन्होंने पहला प्रश्न यही किया था, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम वा न दुपारमं वा विन्देत भूयस ततेव दुःखम यदत्र युक्तिम भगवन् वदेन्नः। तो विदुर जी ने यही कहा था कि सुखाय कर्माणि करोति लोग, सब लोग सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन नातई सुखम वान्य दुपारमम, ना तो उनको सुख मिलता है और ना ही सुख के लिए कर्म करने से उनको क्या बोलते हैं, वो थकावट होती है। इंग्लिश का क्या वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, टायर्ड होना। मतलब उसके बाद ये को चलो अभी खत्म हो जाए, नहीं, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। भारत में नहीं मिल रहा था, चंडीगढ़ में नहीं मिल रहा था, दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में नहीं मिल रहा था, सिडनी में चलते हैं, सिडनी में नहीं मिल रहा था, प्रेसेस में चलते हैं, प्रेसेस में नहीं मिल रहा था, मक्वारी फील्ड में चलते हैं, यहाँ से यहाँ दौड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। तो ये विदुर जी की सबमिशन थी मैत्रेय जी से, ना तो सुख मिलता है, ना उस सुख के लिए कार्य करने से उनका मन भरता है, बस करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर क्या मिलता है, विंदेत भूयस तथैव दुःखम, उनको बार बार भगवान दुखी मिलता है। फिर वो कह रहे हैं कि यदत्र युक्तिम, इस साइकिल से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसका क्या युक्ति है, क्या उसका इलाज है, भगवान वदेन न, हे भगवान आप हमें बताइए। तो कर्मों की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्राचीन बरही इन्हीं कर्म कांड के एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो वो पुत्र तो वहां चले गए, तो नारद जी को लगा कि ये अभी भी इस कर्म कांड में फंसे हुए हैं। आउट ऑफ कंपैशन, एक करुणा, एक हृदय जो होती है,
एक एक भक्त के हृदय में। अभी आप लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाते हो, किस लिए बुलाते हो? बनवारी प्रभु किस लिए लोग फोन करते हैं? इनका नंबर लोगों ने ब्लॉक कर दिया, फिर कहते हैं प्रभु ये हालत हो गई। जितना ब्लॉक मतलब उतनी सक्सेस, ये आप मान लो। 10 लोगों ने आपको ब्लॉक किया मतलब सक्सेस 10 आउट ऑफ 10। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको मेजर किया जाए है। तो जो भक्त है वो आउट ऑफ कंपैशन कहते हैं अरे आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों दुनिया की लातें खा रहे हो? है लोग आपको कितना गरिया रहे हैं, कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी भाग भाग के वहां जा रहे हैं। जो कुत्ते की हालत होती है, कुत्ता जाता है, रोटी मिल जाती है, रोटी का टुकड़ा उसको जूता मारते हैं, कुत्ता दूर जाके देखता है, जूता खा लिया, डंडी लगी, फिर दूर जाके देखता है मालिक अब क्या कर रहा है। अब वो सोचता है इधर उधर गया तो भाग के रोटी खिलाने आएगा, और वही जिसने डंडा मारा था अगर वो कर दे तू 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 कुर 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 कुर, और कुत्ता फिर भाग के आ जाता है कि अब रोटी मिल जाएगी। ये मनुष्य की स्थिति हो गई। गृहपालवत, जैसे घर का पालतू कुत्ता होता है वैसे है मनुष्य पड़ा हुआ है सुख की खोज में, लेकिन वो मिलता नहीं। तो नारद जी आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं प्राचीन बरही की कुछ मदद करो। नारद जी गए प्राचीन बरही के पास, और प्राचीन बरही नाम का मीनिंग समझ लो, बहुत ही गुड मीनिंग है। अच्छा, हमने परपट तो पढ़ा ही नहीं, कथा शुरू कर, सॉरी, थोड़ा क्योंकि परपट इज इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद ने जो कहा है उसको हमें सुनना चाहिए एक बार। वो हमारे गुरु हैं, और ही इज द फाउंडेशन गुरु, फाउंडर आचार्य हैं हमारे इसके। तो मेरे ख्याल से टाइम कम है, श्लोक को रिसाइट नहीं करते। डज एनीबॉडी वांट टू रिसाइट? किसी को कोई रिसाइट? ओके, आप परपट सुन लीजिए एक बार, फिर हम लोग मंगलाचरण करेंगे, फिर वहीं से कथा। अब याद रखना मैंने कहाँ पे विराम दिया है। तो शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन आपने सुन ली, ट्रांसलेशन में आपको फिर से बता दूं, ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं नारद जी प्राचीन बरही को, कि ये जो भगवान है, हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इज टू बी नोन इनडायरेक्टली। भगवान को इनडायरेक्टली समझा जाता है, डायरेक्टली समझ में नहीं आता। डायरेक्टली तो भगवान, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे, वी कैन नॉट सी, एंड दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड अधोक्षज। He is beyond these material senses, so we cannot perceive him, or we cannot see him through these material senses because he is beyond. तो उनको इनडायरेक्टली समझा जाए, तो ये नारद जी उनको बता रहे हैं। इनडायरेक्टली आप सब लोग देखते हैं, इनडायरेक्टली कैसे समझाया जाता है। इनडायरेक्टली हम लोग कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, देखो अरे उसका ये हो गया, वो बेचारा इतना शरीफ आदमी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी हॉस्पिटल में है, अरे लेकिन वो बेचारा सड़क पे पड़ा था, वहां से कोई कार आ गई, कार वाले उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए, और टाइमली उसको दवाई मिल गई, वो बच गया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को बता रहे हैं कि भगवान है ना। डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्टली उसको बताते हैं, कितनी मुसीबत में था, छत से गिर गया था, ये हो गया था, तो इनडायरेक्टली ऐसे भगवान को समझा जाता है। तो वो नारद जी कह रहे हैं कि दैट परोक्ष, यत परोक्ष प्रियो भगवान, वो जो भगवान है वो परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से उनको जाना जा सकता है। इसलिए मैंने ये तुम्हें कथा बताई, वो कथा मैं आपको भी बताऊंगा, तो आप ध्यान दें इस पॉइंट पे। नारद जी कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें बताई है, पारक्षयेण प्रदर्शितम, इनडायरेक्ट वे से मैंने तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन की कथा बताई है, क्योंकि भगवान को इनडायरेक्टली ही जाना जा सकता है, और वो भगवान ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सर्व कारण कारण। ठीक है, अब purport को सुनिए। There are many similar stories in the Puranas for self-realization. As stated in the Vedas, Paroksha Priya Iva Hideva. There are many stories in the Puranas that are intended to interest ordinary men in transcendental subjects, but actually these refer to real facts. They are not to be considered stories without a transcendental purpose. Some of them refer to real historical facts. One should be interested, however, in the real purport of the story. Indirect instruction is quickly understandable for a common man. ये लाइनें समझ लें, एक कॉमन, एक साधारण आदमी की समझ में स्टोरी आ जाती है। उसको भगवान वैसे नहीं दिखता, बोलता भगवान दिखाओ मेरे सामने, भगवान बताओ कहाँ पर है। तो उसको जब हम ये कथा बताते हैं,
आप देखते हैं जब किसी किसी की मृत्यु हो जाती है, हम लोग 13 दिन तक वहां जाते हैं, क्या होता है? 13 दिन तक जो भी आता है सब अपनी अपनी कथाएं बताते हैं, सब बताते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके यहाँ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हो गया। पर्पस क्या है? ऐसा करके हम लोग एक दूसरे को रियलाइज करा रहे हैं कि देखो भगवान है और ये जीवन ऐसे ही चलेगा। भगवान का रियलाइजेशन, और दूसरा ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अब उसको आप संस्कृत बताने लगो, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको बोलो अरे जो आया है उसकी तो मृत्यु होगी, है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च। वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो, कोई मर गया, आप उसको बोलो नहीं नहीं जो पैदा हुआ उसको तो मरना ही है भाई, क्यों परेशान हो रहा है? वो बोलेगा अरे मेरी पत्नी मर गई और तुम आके मुझे ये बता रहे हो। तो उसको फिर इनडायरेक्टली हम कथाएं बता के उसको समझाते हैं, और फिर उसको भगवान रियलाइज करता है। तो ये एसेंस है इस वर्ष की, और यही ये 4 चैप्टर में अब होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी मंगलाचरण करते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भूते महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष। भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकम् सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं। भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। हे भगवान, हे आप मेरी वाणी को अलंकृत करें। हे भगवान, हमारे वचन, हमारे शब्द, may the right words are spoken at the right time, and may we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. तो कहाँ पे थे हम लोग कथा में? क्या बता रहे थे? क्या बताया मैंने आपको? तो प्राचीन बरही, प्राचीन बरही का मीनिंग आप समझ लें। हाँ, प्राची होता है पूर्व दिशा, राइट। और बरही मतलब जो हमारी दूब की घास होती है, जब हम आसन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आपने देखा होगा
पंडित जी आपको कई बार घास का एक तिनका दे देते हैं, इसको रख लो, इसके ऊपर बैठ जाओ। वो दूब की ग्रास होती है। और दूब की ग्रास कैसे आई थी, बताते हैं जब भगवान ने वराह अवतार लिया था और जब पृथ्वी माता को जल से बाहर लेके आए थे, समुद्र की गर्त से बाहर लेकर आए थे, तो उन्होंने जाके जब अपने शरीर को झाड़ा, क्योंकि पानी हो गया था, तो उन्होंने जोर से शरीर को हिलाया, तो हिलाया तो पानी की बूंदें जहां जहां गिरी वो सब पवित्र हो गया। और उनके शरीर से जो एक बाल था वो बाल भी गिर गया, और उस बाल से जो घास बनी उसको दूब घास कहा जाता है। और उसको यज्ञ जब करते हैं पंडित जी लोग, पुजारी लोग, और जजमान को बिठाया जाता है, तो पवित्र आसन के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दुर्वा ग्रास कही जाती है। तो कहते हैं प्राचीन बरही इतना कर्मकांड करते थे, इतना यज्ञ हवन करते थे, पूरी प्राचीन दिशा में घास ही दूब की घास हो गई, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही रख दिया। और बरहिष्मत भी उनका एक नाम है। यहाँ पे जैसे इस श्लोक में उनको नारद जी ने बरहिष्मत कह के संबोधन किया है। बरहिष्मत मतलब जो यज्ञ करने के लिए बैठा है। तो इसके पीछे भी एक उनका उद्देश्य है, उसको रियलाइज करा रहे हैं कि तुम यज्ञ करने के लिए तो बैठे हो, लेकिन तुम जो यज्ञ कर रहे हो, जो कर्म कांड कर रहे हो, उसका क्या पर्पस हो। इसलिए कई बार संबोधित किया जाता है, कई बार आप कह देते हो कि मेरे ऊपर टॉन्ट मार रहा है, तो ये, लेकिन ये इनडायरेक्टली उसको रियलाइज कराया जा रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए प्राचीन बरही बरिष्मत दोनों का ये मतलब समझ गया। यज्ञ के लिए जो बैठा है, हमेशा यज्ञ के लिए बैठे रहते, तो ही वॉज सो मच इनटू कर्म कांड। तो नारद जी ने जब देखा कि प्राचीन बरही के बेटे तो चले गए और प्राचीन बरही कर्म कांड में लगे हुए हैं, तो आउट ऑफ कंपैशन नारद जी वहां पर आए उन पे कृपा करने के लिए। और नारद जी ने प्राचीन बरही को कहा कि हे प्राचीन बरही, तुम ये जो यज्ञ कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या पर्पस सर्व हो रहा है, इसमें तुम्हें अपना क्या कल्याण दिख रहा है, ये जो कर्म कांड आप कर रहे हैं। इससे उन्होंने कहा ना तो दुख हानि, सुख अवाप्ति। ना तो दुख की हानि होगी, मतलब ना तो दुख का हनन होगा, और ना ही इससे सुख की प्राप्ति होगी। न इष्यते मतलब ये अवेलेबल है ही नहीं यहां पर, है, फिर तुम ये क्यों कर रहे हो। तो फिर उसमें प्राचीन बरही ने भी कहा, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे, कुछ तो उनके अंदर सुकृति थी, तो प्राचीन बरही ने स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर लिया, वो नाराज नहीं हुए। नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं, कई बार आप बोलो, अरे शिव जी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, तुमने हनुमान जी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। नाराज हो जाते हैं, सुनते नहीं बात को। नहीं तो वो कह सकते थे इतना लाखों रुपया खर्च कर दिया है, इतने ब्राह्मणों को भोज करा रहा हूं, इतने लोगों का भंडारा चल रहा है यहाँ पे, लाखों करोड़ों लोगों का, आप आके कह रहे हो ये सब क्या कर रहे हो। पॉइंट पॉइंट आप समझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने सुना और स्ट्रेट अवे उन्होंने सबमिट किया कि भगवान, हे नारद जी, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं, जितना मेरी समझ में मैं उस हिसाब से ये कर रहा हूं, है, मुझे ज्ञान नहीं है आप मुझे वो विमल ज्ञान दीजिए। ब्रूहि ज्ञानम में विमलम, वो जो ब्रूहि आप मुझे बताइए वो ज्ञान क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो गृहेशु कूट धर्मेशु, जो गृहस्थ के जो कूट धर्म है, कपटी धर्म भी उनको कहा जाता है, उसमें जो हम लगे हुए हैं वो धर्म सिर्फ पुत्र, दारा और अर्थ, इन तीन चीजों के अराउंड चल रहा है। पुत्र कहते हैं बेटे को, दारा कहते हैं पत्नी को, और अर्थ कहते हैं धन। किसी ने कहा है कि पत्नी, पुत्र, पुत्र, दारा और संपदा पापिन के भी होए। ये तो पापियों के पास भी हो जाते हैं, जो सिंफुल पर्सन होते हैं उनकी भी पत्नी होती है, उनके भी पुत्र हो जाता है, और उनके पास भी संपत्ति आ जाती है। लेकिन संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सेंट से मिलना, भक्तों से मिलना और भगवान हरि की कथा सुनना, ये दोनों दुर्लभ है। तो ये यहाँ पर जब नारद जी ने आके उनको कहा, तो प्राचीन बरही ने कहा कि मुझे नहीं पता है, और मैं तो जो ग्रह के जो कूट धर्म है, विच रिवॉल्व्स अराउंड पत्नी, पुत्र और धन, उसी में लगा हुआ हूं। आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरे दुख का हनन हो जाए और जिससे सुख की प्राप्ति हो जाए।
तो इस तरीके से कह के प्राचीन बरहीने ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। एक और बात है, कई बार हम लोग किसी को ज्ञान बांटने जाते हैं, आप किसी को बताने लगते हो, तो उसमें अगर आपको कोई रुचि नहीं है, सुनने वाले को रुचि नहीं है, तो इट डज नॉट गिव अस अ रिजल्ट। नारद जी आते ही उनको बताना शुरू कर सकते थे। एक और ये भी प्रोसेस है। तो आप कहीं इंक्वायरी लेके जाते हैं, किसी संत से मिलते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं, तो प्लीज बी माइंडफुल, वी शुड रेज अ क्वेश्चन विद सबमिशन। एक भाव होना चाहिए, एक समर्पण के भाव में प्रश्न किया जाए, ना कि चैलेंजिंग भाव में प्रश्न किया जाए। और समर्पण में भी जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न तो कोई भी कर लेता है, आप समझ रहे हैं डिफरेंस? जिज्ञासा और प्रश्न, प्रश्न तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, आपको हृदय से आ रहा है कि मैं कुछ जानूं। तो ऐसे ही प्राचीन बरहीने ने श्री नारद जी से कहा कि आप मुझे बताइए। तो नारद जी क्योंकि दिव्य पुरुष हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से प्राचीन बरही को दिखाया कि तुमने इस यज्ञ में जितने भी जानवरों को मारा है, जितने भी पशु पक्षियों को मारा है, देखो ऊपर वो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्योंकि कर्म कांड में एक ये प्रथा होती थी, कई बार उनकी पशुओं की बलि भी दी जाती है, तो उन्होंने उसको दिखा दिया, देखो ये सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाकी जो नॉन वेज खाने वाले हैं, वो सारे चिकन ऊपर जाके उनका वेट कर रहे हैं, है ना। जिसने भी वो कुछ और भी जो भी खाते हैं, गाय वगैरह जो भी कुछ खाते हैं लोग, तो दे आर ऑल वेटिंग। तो नारद जी ने उनको दिखा दिया दिव्य दृष्टि से कि देखो ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, ये सब अपने सींगों से, फ्रॉम देयर हॉर्न्स, वो तुमको पियर्स करेंगे, यातना दी जाएगी। जब हम लोग मृत्यु होती है, यातना शरीर दिया जाता है, और यातना शरीर में कॉन्शियस आपकी है, लेकिन शरीर आपको आपको मरने नहीं देंगे। वो आप बेहोश हो जाएंगे, फिर आपको जगाएंगे, फिर आपकी पिटाई शुरू कर देंगे, फिर बेहोश हो जाओगे, फिर जगाएंगे, फिर दूसरी पिटाई शुरू कर देंगे। तो यातना शरीर है, ताकि आपकी कॉन्शियस, जो इतना उसमें इतनी लेयर्स लग चुके हैं, वो कॉन्शियस प्योरीफाई हो। तो या तो वो कॉन्शियस हम यहाँ पे रह के हरि नाम के उच्चारण से कर लें, नहीं तो वो फिर कॉन्शियस वैसे की जाएगी, और उसके बाद भी आपको अंत में एक मनुष्य का शरीर फिर से मिलेगा। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट योनियों में भेजा जाएगा, फिर भगवत प्राप्ति होगी। तो ऐसे नारद जी ने उसको दिखाया कि देखो ये सब जो पशु हैं, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जब तुम्हारी मृत्यु हुई। तो प्राचीन बरही ने वो देखा, और प्राचीन बरही को रियलाइज हुआ कि मैं जो कर्म कांड कर रहा हूं, जो मैं ये कर्म कर रहा हूं, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और इससे जो उद्देश्य है वो जीवन का पर्पस सर्व नहीं होगा। नारद जी ने ये कहा कि जीवन का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो उनको रियलाइज हो जाता है। फिर नारद जी ने उनको समझाने के लिए कहा कि मैं तुम्हें एक पुरानी कथा बताऊं। तो कथा शुरू होती है। तो 25वां चैप्टर है, उसको कहा जाता है पुरंजनो उपाख्यान, आख्यान। पुरंजन का उसमें आख्यान किया जा रहा है। तो नारद जी बताते हैं कि पुराने समय में एक राजा था, राजा का एक प्राणी था, और उसका नाम था पुरंजन। और पुरंजन का एक दोस्त था जिसका नाम था अविज्ञाता। अविज्ञाता मतलब जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। अविज्ञाता और पुरंजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और पुरंजन को सेंस ग्रेटिफिकेशन का, उसको भोग भोगने की बहुत इच्छा थी। और वो पूरी दुनिया में सब जगह वो घूमा। एक जगह से दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया। उसके साथ में था अविज्ञाता। एक समय तक वो दोनों साथ में चल रहे थे, और जब भी उसको जरूरत होती थी, अविज्ञाता उसकी हेल्प करता था, उसको गाइड करता था। तो इस तरीके से पुरंजन बहुत जगह गया, लेकिन उसको कहीं पर भी जो उसके लेवल का भोग था वो उसको नहीं मिला। आज के वही इनडायरेक्टली समझाने के भाव से, राइट। आज के उसमें आप सोचें, आपने कई बार सुना होगा, हम लोग वही भारत गांव में रहते थे, गांव से शहर में आ गए, शहर से फिर मेट्रोपॉलिटन में आ गए, मेट्रोपॉलिटन से फिर किसी एमएनसी में जॉब कर ली, एमएनसी में जॉब करके फिर वहां भी नहीं हुआ, फिर अपॉर्चुनिटी मिली विदेश जाने की, फिर विदेश आ गए, किसी एशियन कंट्री में घूमे, कई बार नेपाल जाकर भी विदेश हो आए, श्रीलंका जाए तो भी विदेश हो आए, इस तरीके। लेकिन फिर भी जिज्ञासा, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। फिर सोचा कि नहीं, किसी डेवलप्ड कंट्री में जाया जाए। फिर डेवलप्ड कंट्रीज में मतलब किसी विकसित देश में जाया जाए, और वो विकसित देश में आए तो फिर
ऑस्ट्रेलिया में आ गए, न्यूजीलैंड में आ गए, अमेरिका में आ गए, यूरोप में चले गए और वहां पर सेटल हो गए हैं। और वहां पे सेटल होने के बाद भी आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार बच्चों को बच्चों एक जगह बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ एक जगह है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है बार बार। ओके, प्लीज टेक वन प्लेस। तो उसके बाद आपने देखा होगा कई बार हमारे बच्चे होते हैं, आपने सुना है कोई बताते हैं कि हमारे बच्चे अब इंग्लैंड में गए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहती फैमिलीज, बच्चे इंग्लैंड में जाके रह रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि बच्चे अब अमेरिका मूव हो रहे हैं। अमेरिका में क्या है, नहीं ऑस्ट्रेलिया से बेटर कंट्री। तो इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट, जो पुरंजन थे वो ऐसे जगह जगह जाते रहे लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। एंड व्हेन ही स्टिल वाज नॉट सेटिस्फाइड, उसके बाद एक वो हिमालय पर्वत के पास आए और यहाँ पर हिमालय के दक्षिण में उनको एक नगर दिखाई दिया। और वो नगर दिखाई दिया, उस नगर में 9 दरवाजे थे और नगर के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर वन बने हुए थे, फॉरेस्ट थे उसके चारों तरफ। और फिर डिस्क्रिप्शन करते हैं, नगर के अंदर जो कमरे थे उनकी दीवारें, बड़े बड़े पिलर जो थे सोने और चांदी के बने हुए थे। उनके जो फर्श थे, जो फ्लोर थे, वो बहुत बहुत मणियों से बने हुए थे। नगर के बाहर सुंदर पार्क थे, पार्क में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे। उसके चारों तरफ तालाब थी, लेक थी। लेक में बहुत सुंदर सुंदर जो पानी की मछलियां हैं, पानी की बर्ड हैं, वो उसमें खेल खेल रही थी। और जो जंगल था, पूरे जंगल में फ्रूट के वृक्ष लगे हुए थे और ऐसा माहौल था वहां पर, एवरीबडी वॉज फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर। हर एक पक्षी, हर एक जानवर एक दूसरे के प्रति मित्रता का उनका व्यवहार था। और ऐसा लगता था कि दे आर इनवाइटिंग यू, वो आपको बुला रहे हैं कि हमारे वृक्ष में आप, हमारे वन में आप आइए, हमारे तालाब में आप आइए। ऐसी फीलिंग आती थी वहां पर जाकर है। और यहां तक कह दिया गया है, उस नगरी को कहा गया वो एक भोगवती नगरी जैसी। भोगवती पाताल लोक में, जो नागों का लोक है, पाताल में वहां पे नाग हैं। एक बात आप समझ ले, मैंने पहले ही बताई थी, जो लेवल ऑफ ऑपुलेंस लोअर प्लैनेट्स में है, पाताल लोक में, जो पृथ्वी के नीचे के लोक में है, ऊपर कुछ भी नहीं है। धन संपदा जो नीचे के लोक में है, जो एंजॉयमेंट का अरेंजमेंट जो नीचे के लोक में है, पृथ्वी और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर नगरियां बनी हुई हैं, सोना हीरे जवाहरात सब कुछ है वहां पर। तो इस नगरी को भोगवती नगरी कहा गया, जो नागों की नगरी है। लेकिन सुंदर है, पर क्या है वहां पर, नाग है तो क्या जहरी होगा ना। अब विकसित देश है, विकसित देश में जैसे लंका थी, तो कितनी सुंदर थी लंका, सोने की लंका थी। लेकिन वहां कार्यक्रम क्या चल रहा था, मदिरा चल रही थी, गाय भैंसों को खा रहे थे, मार रहे थे, राक्षस राज था। तो वो विकसित देश का एक उदाहरण दिया गया है। और आजकल आप लोग सो कॉल्ड डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, आप उनका हाल देख लीजिए, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से सारे काम किए जाते हैं, विकसित और विकासशील। तो नगरी एक विकसित नगरी थी। और जब पुरंजन ने देखा उस नगरी को, तो पुरंजन बहुत ही इंप्रेस हो गए और वो वहां पे रुक गए। अब पुरंजन वहां पे रुक गए क्योंकि वो भोग भोगना चाहते थे। जैसे वहां पे रुके तो उन्होंने एक दूसरी तरफ से देखा कि एक झुंड आ रहा था और उस झुंड में सामने एक लड़की थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर कन्या थी और उस कन्या के साथ में पीछे 10 सेवक थे और 10 सेवकों के साथ हजारों सौ सौ उनकी पत्नियां थी। और एक सांप था 5 फुट का, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। तो इस तरीके से वो सामने से आ रही थी। और जब पुरंजन ने उनको देखा आते हुए, तो पुरंजन कैप्टिवेटेड हो गए, पुरंजन अट्रैक्ट हो गए उस लड़की को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, क्योंकि वो भोग भोगना चाहते थे। उन्होंने सारी नगरी तो मिल गई, यहीं पे रहने का सोचा उन्होंने। तो जैसे वो सामने से आया कारवां उस लड़की का, तो पुरंजन वहां पे रुक गए और पुरंजन ने उस लड़की से बात की और उन्होंने उससे कहा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, किसकी तुम पुत्री हो और यहां तुम क्या कर रही हो? तो कहते उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं किसकी पुत्री हूं, मैं यहां पर हूं, बस मुझे यही पता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर हियर, दैट्स ऑल आई नो।
मुझे नहीं पता मैं कि कौन मेरे पिता हैं, कहाँ से मैं आई हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। और उन्होंने पूछा ये सब कौन है, तुम्हारे सेवक कौन है? उसने कहा मैं ये भी नहीं जानती मेरे सेवक कौन है, जब से मैं पैदा हुई हूं तब से ये सब मेरे साथ, ये सांप मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, ये सब मेरे सर्वेंट मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती मैं कौन। तो पुरंजन ने फिर उनसे कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो, मुझे तो लगता है कि शायद तुम लक्ष्मी हो, या पार्वती हो, या माता सरस्वती हो, तुम इन तीनों में से एक हो। लेकिन अगर तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे हाथ में कमल तो नहीं, तुम्हारे हाथ में कमल नहीं है, इसका मतलब तुम लक्ष्मी नहीं हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पैर जमीन पर हैं, क्योंकि तुम्हारे पैर जमीन पर हैं तो तुम लक्ष्मी, सरस्वती या उमा नहीं हो सकती, तुम जो भी हो लेकिन तुम बहुत सुंदर हो, और मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। इस तरीके का प्रपोजल पुरंजन महाराज ने उनके लड़की के समक्ष रखा। और लड़की ने फिर उनको संबोधित किया। लड़की ने कहा कि महाराज, आपके जैसा बलवान, आपके जैसा शूरवीर मैंने नहीं देखा है, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे प्रपोज किया है। तो दोनों की बात हो गई। नारद जी किसको बता रहे हैं? प्राचीन बरही को बता रहे हैं। तो नारद जी ने कहा प्राचीन बरही को कि इस तरह से लड़का लड़की की दोनों की बात हो गई है, और लड़की ने फिर एक्सेप्ट कर लिया, और लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ रहना पसंद करती हूँ, है, और ये सब जो है मेरे सेवक हैं, ये आपके भी सेवक हैं, आप सब भोग को भोगिए, और मैं आपके साथ रहूंगी, और मैं आपकी सेवा करूंगी, 100 वर्षों तक हम लोग इस नगरी में साथ में रहेंगे। तो ऐसा उनका अरेंजमेंट हो गया। अब जो पुरंजन थे राजा, वो उस नगरी में रहने लगे, और वो उस कन्या के साथ उनका गंधर्व विवाह लगा लीजिए। गंधर्व विवाह कहा जाता है, जो लव मैरिज होती है उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। वो साथ में रहने लगे, और उनका समय अच्छे से बीत रहा था, बहुत समय तक एंजॉयमेंट होता रहा, साथ में रहते रहे, बड़ी सुंदर नगरी थी, कभी यहाँ विहार कर रहे हैं, कभी वहां विहार कर रहे हैं, इस तरीके से उनका एवरीडे बड़े अच्छे से बीत रहा था। और समय जाते जाते जो राजा थे महाराज पुरंजन, उनको उस पत्नी से, उसका नाम हो गया पुरंजनी, उससे उनको 1100 पुत्र हुए, 1100 पुत्र, और 110 कन्याएं हुई। कहते हैं उनकी आधी उम्र उसी में निकल गई। 1100 पुत्र, 110 कन्याएं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा उनका परिवार हो गया था। तो इस तरीके से वो रहने लगे। अब कहते हैं कि एक दिन महाराज जो पुरंजन थे, वो उठे, और उन्होंने शिकार जाने का मन बनाया, शिकार करने के लिए। उस दिन उठे, वो तैयार हो गए अच्छे से, और शिकार करने के लिए वो उनको चले गए। अब कहते हैं महाराज पुरंजन गए तो अपना रथ लेकर के गए, साथ में सैनिक थे, और उस दिन वो बहुत ही कहते हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में थे, दया भाव बिल्कुल नहीं था उस दिन, बहुत क्रोध में थे, और गए और उन्होंने जंगल में बेहिसाब कितने ही जो थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे जानवरों को उन्होंने मारा, कहते हैं नील गाय, घोड़े, हिरन, सुअर, जो भी आए उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। अब नारद जी बता रहे हैं, तो नारद जी ने बताते बताते प्राचीन बरही को कहा कि हे प्राचीन बरही, शास्त्र के हिसाब से पहली बात तो ये करना ही नहीं चाहिए किसी प्राणी को, लेकिन किसी को मांस खाने की इच्छा हो तो शास्त्र के हिसाब से जो प्रोसेस है, कई बार क्या होता है कि मतलब वी शुड नॉट इंडल्ज इनटू दिस, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे जो मर्म क्या है, जो विचारधारा क्या है। कई बार कोई क्या होता है कि अगर किसी पशु को मर के अगली योनि मनुष्य की योनि मिल जाती है, तो वो उसका अपग्रेड माना जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं आप लोग जितने भी चिकन खा रहे हैं वो सब अपग्रेड हो जाएंगे, डोंट टेक इट लाइक दैट, है ना। क्योंकि वो एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें पुजारी इन्वॉल्व होते हैं। वो तो किसी गाय को मार करके फिर से जीवित कर देते हैं, बूढ़ी गाय को मार करके जीवित कर देते हैं। कई बार गौ हत्या का उदाहरण, जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का प्रोग्राम बनाया था, तो उनको एक थे वो मुसलमान मुस्लिम जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि
बात चल पड़ी इस बारे में, तो उन्होंने कहा महाप्रभु को कि आपके शास्त्र में भी लिखा है कि गाय को मारा गया है। तो महाप्रभु ने उसको बताया कि नहीं, तुम्हारी नॉलेज पूरी नहीं है, यू हैव डोंट हैव द फुल नॉलेज। तो महाप्रभु, ये रेफरेंस आता है, महाप्रभु ने उनको बताया कि वो जो प्रोसीजर था उसमें, वो जो गाय को मार देते थे वो फिर से उसको जिंदा कर देते थे, और उसका पर्पज यही था कि वो गाय बूढ़ी हो गई है, ओल्ड हो गई है, और वो नेक्स्ट जो भी उनकी जो योनि में जाना है वो नहीं है, तो दे गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हैं आप? तो उसका पर्पस दूसरा था, और उसके लिए बहुत ही वो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, दे हैड द पावर्स, दे हैड द सिद्धीज, उन सिद्धियों की वजह से वो कर पाते। तो बैक टू दिस पॉइंट जो नारद जी बता रहे थे प्राचीन बरही को, कि ये पहली बात तो ये काम करना नहीं चाहिए, और अगर किसी को मांस खाने का ज्यादा इच्छा है, उसको अंदर से डिजायर, क्योंकि ये सब पशु पशु वृत्ति है। दूसरे जीव की हत्या करके उसके मांस को खा लेना, इससे बड़ा कोई, मतलब ये एक पशु सोच है, ये मानवीय सोच नहीं है। आप इसको अगर सोचे तो कोई आपके सामने मर रहा है और आप उसको मार के खा जाए, कितना घिनौनी बात है। उस हिसाब से अगर आप सोचें तो पशु वृत्ति कहा गया है उसको, ये सोच ही, विचार ही है। तो इस तरीके से नारद जी ने बताया उनको, और उन्होंने कहा कि उस दिन महाराज जो थे पुरंजन बहुत ही मतलब क्रोध में थे, और उनके मन में दया भाव बिल्कुल नहीं था, मालूम नहीं क्या खा के सोए थे। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग करें भगवान का भजन करके सोएं, सुबह उठते ही अपने आप को 4 जूते मारे अपने सिर पे, सोने से पहले 4 जूते मारे अपने को कि आज मैंने दिन भर क्या किया, आज मैं दिन में क्या करने वाला हूँ, है ना। तो इस तरीके से विचार शुद्ध रहते हैं दिन की शुरुआत। एनीवे तो वो करके जब महाराज पुरंजन अपने घर वापस आए, तो घर वापस आके उन्होंने स्नान वगैरह किया। ये कुछ माइक ठीक से सेट नहीं हो रहा, अभी ठीक, बार बार गिर रहा है। तो उन्होंने घर आके स्नान किया, थक गए थे, और स्नान करके वो उन्होंने अच्छे से प्रसाद वगैरह ले लिया, खाना ले लिया, और कहते हैं कि फिर से उनके मन में कोई डिवोशनल एटीट्यूड नहीं आया। वंस अगेन उनके मन में कामुकता जागृत हो गया। क्यूपिड ने उनको, आप देखें कई बार ये टिपिकल जो लाइफस्टाइल है कई लोगों का, जैसे कहते हैं पूरा हफ्ता काम करते हैं, फिर अच्छे से पैसा कमाते हैं, फिर फ्राइडे को मदिरापान करते हैं, फिर आप जो भी उनका पार्टनर है उसके साथ संभोग करते हैं, मतलब एक मेंटेलिटी पूरी वो हो जाती है। एंड दे सोच ये रहती है कि मैंने इतना मेहनत की है तो मुझे अब अपने आप को कुछ रिवॉर्ड तो करना है। समझ रहे हो आप? आज एंजॉय तो करना है, इतना सारा मेहनत किया है, पूरा हफ्ता इतने पैसे कमाए हैं, ये किया, गधे की तरह काम किया, ये किया, नाउ आई शुड रिवॉर्ड माई सेल्फ, राइट। यही मेंटेलिटी, तो सेम मेंटेलिटी बताई जा रही है। पुरंजन आए, शिकार किया, सब कुछ किया, देखा, नहाए धोए, अपने शरीर पे चंदन लगाया, अच्छा कपड़ा पहना, फिर खोजने लगे मेरी वाइफ कहाँ है, वाइफ नहीं दिख रही है, कहाँ पर है, इधर उधर ढूंढा घर में जाकर के। फिर जो सेविकाएं थी उनसे बात की, और उनको कहा कि वेयर इज योर क्वीन, जो मैं आता था घर में मेरा इतना ध्यान रखती थी, शी यूज्ड टू गाइड मी, कहाँ पर है वो। तो कहते हैं कि सेविकाओं ने कहा राजा को, पुरंजन को, कि देखो आपकी जो पुरंजनी है, पता मालूम नहीं उसको क्या हो गया है, आज वो बिना नहाए धोए पुराने कपड़े पहने, बिना वो गद्दे वाले बिस्तर जमीन पे पड़ी हुई, फर्श पे लेटी हुई। तो पुरंजन ने देखा, तो पुरंजन को बड़ा वो फील हुआ कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो गया। तो कहते हैं पुरंजन गए, और उन्होंने जाके जो रानी थी उसके सबसे पहले तो उसके पैर उन्होंने टच किए, सबसे पहले भी उन्होंने पैरों को टच किया, और फिर उसको मनाने लगे कि प्रिय ये क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों, तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझसे क्या गलती हो गई। और यहां तक गिर गया, उससे कहने लगे कि देखो, जो गलती करते हैं उनको उनके मास्टर से अगर सजा मिलती है तो बड़े भाग्यवान होते हैं। ये कर्मकांडी की का जीवनचर्या बता रहे हैं नारद जी, आप बीच बीच में ध्यान देते रहे। वो पत्नी के पैर छुए सबसे पहले, पैर छू के जा करके फिर उसको जगाया, फिर उसको अपनी गोद में बिठाया, और फिर उसको कह रहे हैं कि अगर मास्टर किसी अपराधी को सजा देता है तो अपराधी का भाग्य होता है, मुझसे क्या गलती हो गई, आप मुझे सजा दीजिए, आप मुझे बताइए मुझसे क्या गलती हो गई। इस तरीके से महाराज पुरंजन कहने लगे उससे, और कहते उसने कुछ बोला भी नहीं, रानी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है,
महाराज पुरंजन इस तरीके से उसको ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं, उससे माफी मांग रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वो रानी प्रसन्न हो गई। रानी ने प्रसन्न होकर के फिर अपना जो था ठीक से अपना कपड़ा वगैरह पहना और फिर दोनों विहार करने लगे। फिर उनका टाइम पास शुरू हो गया। फिर टाइम पास शुरू हो जाता है। फिर जैसा मैंने बताया उनके 1100 बच्चे हो गए, लड़के हो गए, 110 लड़कियां होंगी। तो फिर महाराज पुरंजन ने उनके लिए सुयोग्य वर देख करके लड़कियों के लिए उनकी शादी कर दी। लड़कों के लिए सुटेबल लड़की देख करके उनकी शादी कर दी। फिर लड़के लड़कियों के बच्चे हो गए, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और पूरा नगर भर गया। उसको कहते हैं पांचाल नगरी। जहाँ पे कर्म करने वाले जीव रहते हैं उसको पांचाल नगरी कहा जाता है। तो पूरा नगरी जो थी भोगवती, मैंने आपको नाम बताया, नाम ध्यान रखिए, भोगवती नगरी थी। और वहां पे पूरे अब ये सारा भर गया। अब पूरा सारा भर गया। इसके जाते जाते राजा लेकिन अभी भी आसक्त थे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार में, और परिवार में उनकी आसक्ति थी। अब इधर राजा को पता ही नहीं लगा, उनकी आधी उम्र चली गई और समय जाने लगा। तो उस वक्त एक नगरी से बाहर एक जगह हुई, वहां के राजा थे चंडवेग। और चंडवेग के जो सर्वेंट थे 360 गंधर्व, 360 गंधर्व उनके सर्वेंट थे चंडवेग के। और 360 गंधर्व और 360 गंधर्वी कितने हो गए? 720। तो उसके वो सारे सर्वेंट। अब चंडवेग ने कहा कि जाओ जाके इस नगरी को लूटना शुरू कर दो। क्योंकि गंधर्व भी क्या करते हैं, वो जाते हैं और जो भोग का सामान होता है उसको भोग लेते हैं। अब गंधर्व और गंधर्वी ने आके यहाँ पे इसकी नगरी में भोग भोगना शुरू कर दिया। महाराज जो पुरंजन थे, पुरंजनी के साथ व्यस्त थे। 1100 बच्चे लड़के, 110 लड़कियां, ग्रैंड चिल्ड्रन, पूरी नगरी भर गई लोगों से। राजा उसी में उलझे रह गए। और इधर अब चोरों ने घुसना शुरू कर दिया। चोरों के रूप में गंधर्व चंडवेग के ये आने लगे। अभी आ गए इतने में, अब देखा इधर लूट खसोट मची हुई है। तो बताते हैं कि काल की पुत्री, काल की पुत्री जिसका नाम था दुर्भगा, नारद जी बता रहे हैं, जिसका नाम था दुर्भगा है, उसको लगा कि मेरी भी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी कुछ लूट खसोट शुरू कर देती हूँ। तो दुर्भगा इस नगरी में आ गई। अब दुर्भगा इस नगरी में आ गई। दुर्भगा के बारे में बताते हैं नारद जी कि एक बार ये दुर्भगा मुझे भी मिल गई थी। नारद जी बता रहे हैं उसको, प्राचीन बरही को, एक बार मैं आया था और ये दुर्भगा इतनी करेक्टरलेस है, ये एक बार मेरे पीछे पड़ गई। और इसने मुझे कहा, नारद जी जो मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मुझे कहने लगी कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। नारद जी बोलते हैं मैंने उसको मना किया कि नहीं मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई और गुस्से में आके उसने मुझे श्राप दे दिया। और उसने मुझे श्राप ये दे दिया कि तुम कभी भी एक जगह नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। यू विल नेवर बी एबल टू स्टे एट वन प्लेस, तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे। तो नारद जी ने कहा मैंने तो उसको भी श्राप की बजाय वरदान में स्वीकार कर लिया। इधर उधर भटक भटक के, अच्छा है मैं एक जगह नहीं रह सकता, नहीं तो मैं भी एक जगह रहूंगा। कहते हैं पानी एक जगह रुक जाए या साधु एक जगह रुक जाए, पानी एक जगह रुक जाए तो उसमें कीचड़ हो जाता है, पानी बहता रहे तो शुद्ध रहता है। तो नारद जी ने उसको वरदान के रूप में लिया। नारद जी ने उसको मना कर दिया विवाह के लिए। तो कहते हैं पर नारद जी ने उसकी मदद की। नारद जी ने उसको कहा तेरे लिए सुयोग्य वर भय है। वो यवनों के राजा थे। उन्होंने कहा तू भय से जाके शादी कर ले। अब दुर्भगा भय के पास चली जाती, यवनों के जो राजा थे, उसने उनको कहा कि मुझसे शादी कर लो। भय ने कहा नहीं नहीं मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। दुर्भगा का मतलब बेसिकली क्या है? दुर्भाग्य, हु ब्रिंग्स इन ऑस्पिशियसनेस। उसने कहा नहीं मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। वो कहने लगी नहीं मैं तो तुम्हारी पत्नी बनी चुकी हूं। उल्टा उसको शास्त्र की बातें बताने लगी। कहती है शास्त्र के हिसाब से अगर कोई प्राणी कोई चैरिटी करने की पोजीशन में हो तो उसको वो चैरिटी करनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई चैरिटी लेने की उसमें हो तो उसको चैरिटी लेनी भी चाहिए। तो मैं एज ए चैरिटी तुम्हारे पास आई हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। शास्त्र बताने लगी। देखो अक्सर होता है, कई बार हम अपने विचार को ठीक रखने के लिए शास्त्र का उदाहरण दे देते हैं, मौका मिलते ही कुछ ना कुछ हम लोग अपना लगा देते हैं एंगल उससे।
है ना। तो बहन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा, पर हाँ मेरे मन में, मेरे विचार में तुम्हारे लिए एक पति है। तो उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हारी शादी प्रज्वार से करा देता हूँ। प्रज्वार जो मेरा भाई है, मैं उससे तुम्हारी शादी कराता हूँ, वो तुम्हारे लिए सूटेबल वर होगा। और साथ में ये भी कह दिया कि तुम मेरी बहन बन जाओ। देखो तुम मेरी बहन बन जाओ और तुम मेरे भाई से शादी कर लो, जिसका नाम है प्रज्वार, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। और तुम दोनों मिलके जब ये पुरंजन की नगरी को लूटने जाओगी, मैं भी पीछे पीछे अपनी सेना को लेके आ जाऊंगा, हम सब मिलके इसको लूटेंगे। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। अब वो प्लान उनका सक्सेसफुल हो गया। प्रज्वार और दुर्भगा आपस में पति पत्नी हो गए, और वह अपने सैनिकों को लेकर के उन्होंने फिर धावा बोल दिया पुरंजन की नगरी पर। और उधर से गंधर्व और गंधर्वी वो ऑलरेडी अपना अटैक कर रहे थे। अब चलने लगा, अब इन्होंने लूट खसोट मचा दी, तो इधर अब महाराज पुरंजन को लगा कि सब कुछ लूट रहा है, क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। यहां तक कि बताते हैं जो 5 हुड वाला जो सांप था, उसने भी बेचारे ने फाइट करने, द होल नगरी वॉज प्रोटेक्टेड बाय दैट 5 हुडेड स्नेक। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी धीरे धीरे हारने लगा। वो हारने लगा, बाकी जो सेना थी, जो 10 सैनिक थे उसके, 10 जो सेवक थे उसके पुरंजनी के, जो मैंने शुरू में बताया, वो सब भी हारने लगे। सब हारने लगे धीरे धीरे। पुरंजन ने बहुत कोशिश की फाइट करने की, उसके लड़कों ने फाइट करने की कोशिश की, उसके दामादों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको नहीं बचा पाया। इसकी बैटरी चलेगी लगता है। हरे कृष्णा। डू यू हैव बैटरी? घर पे पड़ी, चल जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई। देखें, अगर इस टाइप की बैटरी हो तो थोड़ा बोलने में आसानी होगी। ये बैटरी थोड़ा एक्स्ट्रा रखें प्रभु, 10-15 बैटरी। कोई बात नहीं। मिल गया प्रभु। अच्छा। याद रहेगा ना आप सबको, अभी ये इंटरवल हुआ है। नहीं, अब चैप्टर 27 में आ गए हम लोग। एक स्टोरी। मार्केट में तो नहीं चलेंगे, ये साथ में ही है नहीं, ना फिर रहने मार्केट। देते हैं, अगर मतलब घर में है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं ना हम लोग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? मैंने बताया, फिर अटैक कर दिया इन्होंने। भय, दुर्भगा, प्रज्वार उसका भाई, इनके सैनिक, उधर से गंधर्व, सबने अटैक कर दिया। पुरंजन ने बहुत कोशिश की, पुरंजन की सेना ने, कि किसी तरीके से इसके अटैक को हम लोग डिफीट कर दें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। फाइनली बताते हैं, आखिरकार पुरंजन को एक गले में रस्सी बांध करके, उसको बंदी बना करके ये लोग उसको खींच के ले गए। और जो पुरंजन को लेके जा रहे थे, जाते वक्त पुरंजन चिंता कर रहा था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे साम्राज्य का क्या होगा, मेरे घर को कौन संभालेगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, पुत्रियों का क्या होगा, है? और ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरा इतना ध्यान रखती है, इसका कौन ध्यान रखेगा। हालांकि ये राजमाता है, पर ये कैसे इस राज्य को संभालेगी, कैसे घर चला पाएगी, इस तरीके के वो विचार कर रहा है जाते जाते। लेकिन फिर भी वो उसको ले गए खींच करके, और वहां पे ले जा करके फिर जब उसको प्राचीन बरही ने दिखाया था कि जितने भी जानवरों को उन्होंने मारा था, फिर उसको वो सजा दी गई। तो पुरंजन को सारी सजा मिली, और कहते हैं इस सजा मिलने के बाद जब उसका फिर से मनुष्य जन्म लेने का समय आया, तो अब की बार पुरंजन ने जन्म लिया विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में। So this time he was born as a girl. एक विदर्भ राज जो थे उनके घर पे, वहां पे लड़की के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एंड ही ग्रू अप वंस अगेन, बड़े हो गए, बहुत सुंदर कन्या थी वो। और फिर उनका स्वयंवर रचा गया। जब उनका स्वयंवर हुआ तो कहते हैं मलय ध्वज नाम के राजा थे, जिन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया था। मलय ध्वज केम एंड मलय ध्वज इन स्वयंवर, मलय ध्वज ने वो जो कन्या थी उसके साथ विवाह किया। उनकी दोनों की शादी हो जाती है, एंड she went and started staying with Maladhwaj. And Maladhwaj, from Maladhwaj, they again had 11 children, boys and girls, लड़के पैदा हुए, कन्या पैदा हुई, और उसके बाद उनका विवाह हो जाता है। लेकिन जो मलयध्वज राजा थे, नारद जी बता रहे हैं, उनकी भगवान में बहुत रुचि थी। He was an ardent devotee of Lord Krishna. After he realized that it is now time for the retirement, then he quit everything. उन्होंने सारा साम्राज्य छोड़ दिया, and he went to the forest to worship भगवान वासुदेव. He was staying in the forest, जंगल में रहते थे, भगवान कृष्ण की आराधना करते थे. He was worshiping Lord Krishna. And after some time, he
realized, उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया, उनको भगवान का क्या कह सकते हैं, आत्मा और परमात्मा का सोल एंड सुपर सोल कनेक्शन उनको समझ में आने लगे. He realized that that Supreme Lord is within my heart. He could realize that because remember, the only way to realize या भगवान हृदय में तभी आएंगे. Remember we discussed the prayers of unborn child. An unborn child, जो गर्भ में जो बच्चा है जन्म लेने से पहले, वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, you can only be seen by people who are truly repentant. अतप्यमान हृदये वसितुम नमामि. अतप्यमान मतलब रिपेंट करना, तपाना अपने आप, राइट. जो ट्रूली रिपेंट करते हैं भगवान, आप उनके हृदय में रहते हो, या रहते तो आप सब जगह हो, बट ओनली दे कैन रियलाइज यू. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. श्वेताश्वतरो उपनिषद में बताया गया है, दिस इज वेरी क्लियरली स्टेटेड देयर. द्व सुपर्णा सखाया, द्व सुपर्णा सुयज सखाया. Dwa means two. Suparna is friends. Beautiful. Suparna is too beautiful. Dwa is two. Suparna is beautiful. Sayuja means they are very closely connected. They are always together. Sakhaya means friends. Two friends which are like beautiful birds, they are always together. Samanam vriksham pravishajjate. Samanam vriksham pravishajjate. Right? They are staying on the same tree. But tayor anya, of the two, what is doing one? Pippalam swadu. Pippalam means fruit. Right? And swadu means enjoying. Atti, eating. One bird, of the two birds, one bird is enjoying the fruits, eating the fruits. And what is other bird doing? Na ashnan anyo. Na ashnan. Other one is not enjoying the fruits. Right? He is witnessing. So Maharaj Maladhwaj ko same realization ho gaya. He had the same realization when he was in the forest performing the austerity, and he was sitting in this posture. As he was sitting in this posture, he realized he had the same realization. And once he realized that I am that Jeev bird and that Supreme Personality of Godhead Krishna is that other bird within my heart, he immediately got liberated from the body. और वो बैठे थे, और जो उनकी पत्नी थी, जो पिछले जन्म में क्या थी? पुरंजन. Right? Puranjan. So that female, that wife of his, she used to serve him. And one day, when she came to massage his feet, she felt no warmness. उसको लगा ये पैर तो गर्म नहीं, ठंडे हो गए. और उसको लगा अरे ये तो मर गए. Because then she realized he is no more. There was no life in the body. And then she started crying. Then she started crying. After crying profusely, and she was calling out to him. She was saying to him, "Oh king, please wake up. आप उठो. पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कितने चोर आ गए हैं. There are thieves everywhere. They need you. You need to come out. You need to protect them." एक रानी राजा को यही तो कहती है. She is waking you up. "Oh king, please wake up. Without you, this kingdom will not survive. This whole thing will collapse without you. Please wake up." Like this, इस तरीके से वो रो रही थी, उनको जगाने की कोशिश कर रही थी. But after some time, she realized he's no more. And then she arranged fire. लकड़ियों को इकट्ठा किया, अग्नि का अरेंजमेंट किया, और उसके शरीर को, राजा की बॉडी को उसने, she put it on the pile of the woods. And as she was crying and she was
trying to lit the fire, अग्नि जलने की कोशिश कर रही थी उसकी चिता को, इतने में वहां पे एक ब्राह्मण आ जाते हैं. One Brahman came there, and that Brahman started speaking to her. He asked her, "Who are you? तुम कौन हो? और ये कौन है?" तो उसने कहा, "मैं इसकी पत्नी हूं, ये मलध्वज है." And then he asked the wife, the queen, "Where did you come from?" And then she introduced, "I'm the daughter of Vidarbharaj." And then she asked Brahman, "Who are you?" तो ब्राह्मण ने कहा, "मैं तुम्हारा वो दोस्त हूं, अविज्ञात." I am your friend, same friend, अविज्ञात. And then she said, "कौन अविज्ञात?" उन्होंने कहा कि ना तो तुम विदर्भराज की पुत्री हो, तुम पिछले जन्म में you were पुरंजन, and when you left your body you were crying for your wife. That's why you are born in this life as a woman, because you were crying profusely for your wife, so you are born as a woman in this life. However, ना तो आप मलध्वज की पत्नी हो, ना आप विदर्भराज की पुत्री हो, ना तुम पुरंजन हो, right? You are a living entity. You are a pure soul. And that Supreme Personality of Godhead, you have a direct connection with Him. But because you are engaged in your previous life, you are engaged, तुमको भोग भोगने की इच्छा थी, you are पुरंजन, तुमको पत्नी के साथ भोग भोगने की इच्छा थी, तुमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, you traveled from country to country to find sense gratification. At that time, you forgot me. I was with you. I was always there with you. I was helping you. But you forgot me. What can I do? So now I am telling you, you are not a woman, you are not a man, you are not his wife, he is not your husband, you are not Puranjan, you are a pure living entity, you are a pure soul. And your duty is to worship Supreme Personality of God. तो अब नारद जी कह के ये कथा पूरी करते हैं. तो नारद जी प्राचीन बरही को कहते हैं कि हे प्राचीन बरही, तुम ये कर्म कांड मत करो. Don't engage yourself in these karma kand activities, because you are a true devotee, you are a true soul. Now, in the next chapter, chapter number 28, we will discuss further. In the next chapter, Maitreya ji is telling Vidurji the context behind this katha, right? That why this happened, what was the objective of this. But by doing this, by this indirectly telling, which is today's verse, right? Barhishman etad, right? Adhyatamam, right? Of self-realization. This self-realization, parakshen pradarshitam, which I have spoken to you indirectly, because that Supreme Personality of Godhead, who is the cause of all causes, can only be known indirectly. भगवान ने तो बता ही दिया है, अहम सर्वस्य परवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता. But do we know? It is only when something unexpected happens, something unwanted happens, Bhagwan kahan ho? Then we say, God, where are you? He's saying, I'm here. Right? Like I told you, so this is the conclusion. Shvetashatra Upanishad. That's what it is saying. Dva suparna sakhaya suyuja. Sayuja. Sayuja means they are connected like this. They cannot be separated. But one bird is trying to enjoy the fruits and other bird is witnessing. So we have just turned away from the Supreme Lord. This Supreme Lord is looking at this bird, but this bird is looking other side. So all we need to do is this bird has to turn around and look at this, and then they will be together. Okay, so we'll stop here now. Srimad Bhagavatam ki. Any? So any Srila Prabhupada